हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नमस्कार। अ, जी गुड इवनिंग जी। सो आजो सारे स्टूडेंट ऑनलाइन ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਨਾਲ ਉਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸ਼ਰਨ ਜੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਏ। ਤਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ 1968। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਭਿਜੋਤ ਧਵਨ ਨੇ 1968। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 1-2 ਮਿੰਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 1968 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਮਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੀ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਵਿਨੀਤ ਕੰਬੋਜ 1968, ਰਾਮਾ ਬਾਂਗਰ 1968, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 1968, 1986, 1992 ਤੇ 2020। 1968 ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। 1986, 1992 ਤੇ 2020 ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪਾਲਿਸੀ 1968 ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਲਿਸੀ 1986 ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਤਾਂ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਲਿਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1964 ਤੇ 66 1964 ਤੇ 66 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 1964-66 ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਜ ਰੱਖੋ, ਸਲੋਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 1968 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ 1968 1986 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 2020 ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1964-66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰੈਡੀਕਲ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਰੈਡੀਕਲ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ। 1964-66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਕਲ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੈਡੀਕਲ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1968। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
सैकेंड पॉलिसी जिहड़ी अपनी 1986, सैकेंड पॉलिसी अपनी किहड़ी है 1986 दे विच जी। 1986 दे विच जिहड़ी नवीं पॉलिसी अपने कोल आई सी उहदे विच ध्यान दे नाल जो मैं कुछ टर्म्स लिख रहा वो अपनी नोटबुक ते तुसीं नोट भी करो ते उसनूं सुन भी लो। एजुकेशन स्पेशली फॉर इंडियन वोमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। ध्यान दे नाल नोट कर लो इस गल नूं। 1986 दे विच अपनी जो पॉलिसी रिकमेंड हुई है राजीव गांधी जी के टाइम ते उस दे विच जिहड़ी एजुकेशन है स्पैशली किहदे वास्ते रिकमेंड की गई, इंडियन वोमेन। उस समय दे विच जिहड़ी भारती औरतां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स नूं एजुकेट करन दे लई खास करके ये जो कम्यूनिटी सी SC ST कम्यूनिटीज़ नूं एजुकेट करने वास्ते ते भारती वूमेन, क्योंकि तुहानूं पता होएगा कि इस तो पहला वाले समय दे विच अगर आप जाने हाँ अज के समय दे विच भी वोमेन्स नूं कुछ होर नज़रां नाल देखिया जाता है, SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों नूं भी, बट फिर भी अज के समय काफ़ी कुछ इंप्रूव हो गया है। बट अगर आप पिछे चलीए तो उस सालों के विच इंडियन वोमेन्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जिहड़े लोग सी वो बहुत ज़्यादा अनएजुकेटिड ते अनअवेयर सी। सो उस चीज़ नूं करन वास्ते ये 1986 दे विच ये वाली जो पॉलिसी दे विच डिस्कशन हुई। ठीक है जी। देखो जी ये क्वेश्चन पेपर विच पूछे जा सकते ने। पेपर विच कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुकेशन फॉर वोमेन SC एंड ST किहड़ी पॉलिसी विच डिस्कस होया तो 1986 दे विच। ठीक है जी। उस तो बाद आपां गल करन जा रहे हैं 1992 दे विच, जिहदे विच आपां लिख सकते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जिन्हों पंजाबी च कहंदे ने संशोधन। इन 1986 अमेंडमेंट की गई जिहदे विच इक्वैलिटी एंड क्वालिटी दो टर्म्स नूं ज़्यादा विच रखा गया। क्योंकि पहला आपां पढ़िया सी फस्ट पॉलिसी दे विच आपां रीस्ट्रक्चरिंग पढ़िया, सैकेंड पॉलिसी दे विच आपां एजुकेशन फॉर वोमेन कास्ट वास्ते पढ़िया, तो थर्ड दे विच इक्वैलिटी हुंदी है बराबर, क्वालिटी हुंदी है एक तरह के गुण, गुणवत्ता सिक्ख्या नूं इंप्रूव किया गया किस दे विच 1992 दे विच। ये पॉलिसी नहीं हैगी, मैं बार बार दस रहा, जस्ट अमेंडमेंट इन 1986 एक जस्ट अमेंडमेंट की गई है जो कि अपने 1986 की जिहड़ी सैकेंड पॉलिसी है। हाँ जी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग गया जी। प्लीज़ रिप्लाई नाल दी नाल कर दो। वंस अगेन सर आप नोट सेंड करोगे। हाँ जी जो भी बच्चे कल से हमारी पेड क्लासेस स्टार्ट हैं, आज की जो डेमो क्लास सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थी, कल तो जिहड़ी डेमो क्लास स्टार्ट उहदे विच तुहानूं हर चीज़ मिलेगी, नोट्स भी मिलणगे, PPTs भी मिलणगियां, रिकॉर्डिड लैक्चर्स भी मिलणगे, सब कुछ प्रोवाइड होएगा। जो चीज़ां आप अज डिस्कस कर रहे हैं वो भी रिकॉर्डिड तुहानूं सारा कुछ मिलेगा। ठीक है जी। देखो एक क्वेश्चन नूं आपां किहदे तरीके नाल स्टडी कीती है जिहदे विच आपां नूं सारे कंसैप्ट क्लीयर हो गए। ठीक है ओके अमन मान ठीक है। हाँ जी हुण आप आने जी सैकेंड क्वेश्चन दे। रिप्लाई करो जी जल्दी जल्दी, वैसे काफ़ी बच्चे ने रिप्लाई करता सैकेंड क्वेश्चन का। हाँ जी भारत विच नवीं सिक्ख्या नीति 2020 की घोषणा कितने साल बाद हुई जी। सैकेंड क्वेश्चन आंसर रिप्लाई करो। पहला मैनू वैसे कुछ कमेंट्स आए ने उहदे विच लिखिया है 34 इज द करैक्ट आंसर। जो अपने को डायरैक्ट क्वेश्चन है जिहदे नाल मतलब कि ज़्यादा अपने को डिस्कशन नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगावांगे।
35 नहीं जी, 34। 1986 देखो जी, 1986 तो 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1986 ਤੋਂ 2020। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 35 ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ 34 ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਬਿਲकुल सही आंसर दे रहे ने बच्चे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 ते आपां चलदे हां। नवीं सिक्ख्या नीति 2020 के अनुसार किहड़ी जमात तक दी सिक्ख्या नूं, किहड़ी जमात दी सिक्ख्या नूं मात भाषा, स्थानी भाषा, खेतरी भाषा विचों करवाया जावेगा? हाँ जी, आंसर रिप्लाई करो जी। थर्ड क्वेश्चन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जिहड़ी अपने कोलों नीति 2020 है ਉਹਦੇ अनुसार ਕਿਹੜੀ जमात की सिक्ख्या नूं, ਕਿਹੜੀ जमात की सिक्ख्या नूं मात भाषा, उथों की रहन वाली भाषा या खेतरी भाषा विचों करवाया जाएगा? हाँ जी, आंसर 6 आ रहा जी, 3 आ रहा जी, 5th आ रहा जी। जिहड़ा आंसर इहदा करैक्ट है जी वो है जी बी आंसर। 5वीं जमात तक ये जिहड़ी एजुकेशन दे विच जिहड़ी सिक्ख्या है वो मात भाषा, स्थानी भाषा या खेतरी भाषा दे नाल करवाया जाएगा। द आंसर इज बी। थर्ड द आंसर बी करैक्ट है। ठीक है जी, गुड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ जी, जिहड़ा कि फाइनांस दे नाल संबंधित है, खर्चे दे नाल संबंधित है। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ GDP ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4.43% है, 4.43%। पर नवी एजुकेशन पॉलिसी दे लई किन्ने प्रतिशत है? हाँ जी, रिप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4th 8%, 4%, चलो कुछ भी रिप्लाई तो करना ही आप, बट जिहड़ा इनका करैक्ट आंसर है वो है जी 6%। मतलब कि इनका आंसर है जी ए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 6%, 8% रिस्पोंस काफ़ी आ रहे ने, तो 8% नहीं है जी इनका आंसर। नवी सिक्ख्या नीति के अनुसार GDP का कुल 6% खर्च किया जाएगा। ठीक है, 6% इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इहदा रिप्लाई तुसीं बड़े अच्छे तरीके नाल जल्दी दे सकते हो। स्कूल पाठक्रम के 10+2 पहला कल मैं तुहानूं एक PPT दिखाई सी जिहदे विच 2 बॉक्सिस बने हुए सी। एक 10+2 पैटर्न सी, एक अपने कोल 5+3+3+4। कल मैं तुहानूं कोड दस्सिया सी 5334। एक गल ध्यान रखियो, जदों भी आपां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो कई बार अपने कोल जिहड़े ईजी क्वेश्चन होंदे ने उन्हां नूं आपां बड़ी जल्दी अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार ये तो सानू आंदा है, बट ਉਹਦੇ ਲਈ थोड़ा जिहा कोड ध्यान दे नाल नोट कर लिया जे 5334 5334। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बच्चे ने रिस्पॉन्स दिता है 5334 वाट्स। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी, करैक्ट आंसर है। मतलब कि इनका आंसर बी अपने कोलों करैक्ट है जी। ठीक है, गुड, बी ऑप्शन इज करैक्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 6, नवी सिक्ख्या नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कल आप डिस्कस किया सी, जदों आपां तुहानूं एक इंडैक्स बना के मैं समझा रहा सी भी वोकेशनल स्टडी किहड़ी क्लास तो शुरू की जाएगी, जिहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी एक वर्ड लिखिया सी, इन शब्द तुसीं नोट कर लो, इंटर्नशिप।
ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ 6 ਕਲਾਸ ਆਂਸਰ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल कोरैक्ट 6 सी ऑप्शन इज कोरैक्ट। नवी सिक्ख्या नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स 6वीं क्लास तो स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, सोनम जी ने 34 रिप्लाई किया है, बी ऑप्शन की रिप्लाई कर रहे हैं। रजिंदर कुमार 6th क्लास, हाँ जी 6th क्लास आंसर ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? 1968 ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1992 ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? 1968। दूसरी पॉलिसी ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 1986। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? 1986। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। 7th क्वेश्चन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 7th क्वेश्चन ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੀ। 1986 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 1992 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। क्वेश्चन पढ़ लो, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। मतलब कि सैकेंड पॉलिसी सी जिहदे विच अमेंडमेंट की गई सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी सिक्ख्या नीति 2020 किसने तैयार की? CBSE, कस्तूरी रंजन समिति, भारतीय योजना कमीशन, कोठारी कमीशन। हाँ जी, 8th क्वेश्चन का आंसर जल्दी तो जल्दी दो। 8th क्वेश्चन आंसर मैं एक मिनट वेट कर रहा। 8th क्वेश्चन आंसर अभिजोत धवन बी आंसर, रामा जी ने बी, सिमरन कालड़ा बी। हाँ जी, एट्थ दा बी। हाँ, इस तरह रिप्लाई तुसी करते हो तो ठीक लगता है। 8th दा बी। बी आंसर बिल्कुल कोरैक्ट है। अगर असी जी नवी सिक्ख्या नीति कस्तूरी रंजन समिति वालों तैयार की। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9th क्वेश्चन ਆਪਾਂ पढ़ते हैं। नवी सिक्ख्या नीति 2020 के चेयरमैन कौन हैं? नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, कस्तूरी रंजन, नन ऑफ दीज। 9th क्वेश्चन का आंसर देखो बिल्कुल क्लीयर हो रहा है। 9th क्वेश्चन से तुसी नाल दी नाल आ जाओ। कस्तूरी रंजन समिति कस्तूरी रंजन नाम तो ही तैयार हुई है। तो अगर मैं इन्हां दा पूरा नाम डिस्कस करांगे तो इन्हां दा नाम है पूरा डॉक्टर कृष्णा मूर्ति कस्तूरी रंजन। पूरा नाम तुसी नोट कर सकते हो, पेपर विच पूछा जा सकता है। 9th दा सी कुरैक्ट आंसर है कस्तूरी रंजन समिति वालों तैयार की गई। इन्हां दे चेयरपर्सन डॉक्टर कृष्णा मूर्ति कस्तूरी रंजन जी ने
ठीक है जी। तो आंसर जो 6th है बिल्कुल तुहाडे सामने है। क्वेश्चन नंबर 10th बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नवी सिक्ख्या नीति 2020। हाँ जी, मैं 10th क्वेश्चन ते मनदीप सोढी जी सी आंसर, तुसी 9th का सी आंसर दिता जी, सही आंसर है जी। 9th का सी सुधीर कुमार बिल्कुल सही है जी। आप 10th क्वेश्चन ते हुण डिस्कस करते हैं। नवी सिक्ख्या नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय नूं किहड़ा नां दिता गया है? अच्छा क्वेश्चन है। नवी सिक्ख्या नीति जिहड़ी अपनी 2020 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसनूं किस नाम दे नाल हुण स्टडी किया जाएगा? तो बड़ा ही निकनेम आ गया है। आंसर आ रहा है रामा जी ने। सर नेम रिपीट कर दो। डॉक्टर कृष्णा मूर्ति कस्तूरी रंजन। हाँ जी ठीक है जी। शाइना नू रिप्लाई मैं कर रहा जी। हाँ जी इसरो के चेयरमैन रामा जी जी जी। क्वेश्चन नंबर 10th नवी सिक्ख्या नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय को केड़ा नाम दिता गया? 10th का आंसर आप पहला ऑप्शन देख लिए, विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, सिक्ख्या मंत्रालय, नवी सिक्ख्या मंत्रालय। तो जिहड़ा इहदा आंसर है वो है जी सी सिक्ख्या मंत्रालय। ठीक है, सी ऑप्शन इहदा करेक्ट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 नवी सिक्ख्या नीति 2000 विचों किहड़ी स्टेज विचों कौशल विकास शुरू किया जाना है? ये अपने को क्वेश्चन पहला भी डिस्कस हो चुके हैं। हाँ जी इहदा आंसर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। कौशल ते वोकेशनल ये दो शब्द नोट कर लो। वोकेशनल ते कौशल नू मैं कल इंग्लिश विच भी दस्सिया सी स्किल एजुकेशन। स्किल वोकेशनल ओबलीक स्किल जो वोकेशंस नू डिस्कस करना चाहते हैं या स्किल्ड एजुकेशन है वो अपनी केड़ी क्लास तो स्टार्ट है? द आंसर इज बी 6th 11 द 6th क्लास। ठीक है जी। शिंकी मोंगा क्लास 6। हाँ जी हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ईजी ने ਆਪਾਂ थोड़ा ਉਹਦੇ टाइम नहीं लगा रहे हैं। नैक्सट क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हाँ जी बी आंसर ठीक है रजिंदर कुमार जी 6th क्लास ठीक है। नवी सिक्ख्या नीति 2020 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ जी आप भी डिस्कस कर चुके हैं। द आंसर इज सी 5वीं जमात तक। 5वीं जमात तक घट्टो घट्ट मात भाषा जी आप पिछे डिस्कस किया सी ना, मात भाषा स्थानी भाषा राष्ट्र केंद्रीय भाषा के नाल ਉਹੀ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ਉਹਦੀ सेंस थोड़ी जी बदल गई है। नवी सिक्ख्या नीति 2020 ਵਿੱਚੋਂ एक विद्यार्थी ਨੂੰ अपनी मात भाषा ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ जमात ਦੇ ਨਾਲ? हाँ जी 5th क्लास ऑप्शन सी इज करेक्ट बिल्कुल सही। हाँ जी नैक्सट पीपीटी नैक्सट अपने कोलों क्वेश्चन नंबर 13 नवी सिक्ख्या नीति 2000 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ है? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 8th ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5th 8th 10th ਤੇ 12th ਇਹ ਚਾਰ ਬੋਰਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5th ਨੂੰ 8th ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ आंसर रिप्लाई करो। 13 का आंसर की आ सकता है? 13 का बी सी अभिजोत धवन ने आंसर किया 10 नमिता अग्रवाल बी
13। आंसर है जी ए, ऑप्शन इज ए। मतलब कि 10th क्लास दे बोर्ड ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, वैसे तो अपने वास्ते न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जिन्नियां भी रिकमेंडेशंस होईयां ने, अमेंडमेंट्स होईयां ने, सारे क्वेश्चन ही अपने लिए नवे ने। मतलब जो मैं अज तुहानू लगभग 25 क्वेश्चन इत्थे डिस्कस करन जा रहा हाँ, तो होप सो भी उहदे विचों तुहानू डायरैक्ट क्वेश्चन पेपर दे विच मिलणगे। बट मैं नाल दी नाल उहदे बारे तुहानू जिहड़ी उहदी पिछली वाली पॉलिसी सी उहदे बारे भी जिन्ना को आपां नू सही लगदा है अकॉर्डिंग टू कंटेंट तुहानू दस रहा। क्योंकि मैं तुहानू एक गल करांगा कि जेकर असी कोचिंग क्लासिस ज्वाइन कीतियां ने, असी इस एक्सपीरियंस दे नाल कोचिंग क्लासिस नू टाइमिंग दे रहे हाँ भी तुहाडा कंटेंट सही तरीके नाल कवर अप होए अकॉर्डिंग टू टाइम, समय की नज़ाकत नू समझते हुए आपां अपने सिलेबस नू भी कवर करना है तो सही कंटेंट नू भी अचीव करना है, ताकि एक आपां ऑथेंटिक मटीरियल की स्टडी करके ऑथेंटिक आंसरस उत्थे दे सकी। बहुत ज़्यादा भी लैवल्स होंदे ने जिहदे विच असीं लो लैवल, मिडल लैवल, हाई लैवल, मोस्ट हाई लैवल, तो उहदे विच आपां बहुत ज़्यादा अगर आपां गहराई दे विच जा रहे हैं तो मेरे ख्याल नाल अकॉर्डिंग टू टाइम आपां उस चीज़ नूं अचीव नहीं करांगे। क्योंकि जिहड़ा फस्ट टाइम पेपर अपनी पंजाब गवर्नमेंट स्टेट लै रही है NTT, जिन्हों आपां कल लिखिया सी DECE, इट्स बेस्ड ऑन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है ना, क्योंकि 12वीं क्लास का बच्चा ये डिप्लोमा कर रहा है तो फस्ट टाइम पेपर होने जा रहा है तो वो लैवल के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप आपके लैवल नहीं छड्डना। ये नहीं है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, अगर मैं डिस्कस करा 10th की 8th की 12th की बोर्ड की अगर आप हिस्टरी वाल जाइए तो बहुत ज़्यादा जोड़े लैक्चर ने बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल नाल वो तो अपने लिए अज के टाइम लिए जरूरी नहीं है। ठीक है जी सर, इसकी PDF मिल जाएगी क्या न्यू पॉलिसी ऑफ 2020 की? जी मिल जाएगी। हाँ जी जी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, नवी सिक्ख्या नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कदों तक चली? जी क्वेश्चन नंबर 14 नूं आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। तो इनका आंसर अपने को 15 जुलाई 2019 तो लैके 31 अक्तूबर 2019 तक, 15 जनवरी तो 2019 तो 31 अक्तूबर 2019 तक, 20 जनवरी 2019 तो 31 अक्तूबर 2019 तक, 20 फरवरी 2019 तो 31 अक्तूबर 2019 तक। तो इनका आंसर हाँ जी आंसर आ रहा है 26 जनवरी 2019 तो 31 नव। हाँ जी नव के नाम तो आ रहा है, बिल्कुल सही। सी आंसर एदा करैक्ट है, बट ये थोड़ी जी मिस्टेक है 26। ठीक है हाँ जी टाइपिंग मिस्टेक है। 26 जनवरी 2019 तो 31 अक्तूबर 2019 तक। करैक्ट आंसर द आंसर इज सी। PPT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 20th जैन दिख रहा सी, बट इनू मैं करैक्ट कर दिता है 26 जनवरी 2019 तो 31 अक्तूबर 2019 तक ये परामर्श प्रक्रिया चली सी अपनी नवी सिक्ख्या नीति की। ठीक है ओके आंसर इज सी। अभिचोद धवन ए आंसर ठीक नहीं है, द आंसर इज सी। सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15, नवी सिक्ख्या नीति का लक्ष्य मतलब की हुंदा ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 15 नूं तुसीं पढ़ो, रिप्लाई करो नाल दी नाल। 8 तो 13 साल की उम्र तक के बच्चे नूं क्वालिटी एजुकेशन देना है। नवी सिक्ख्या नीति का लक्ष्य 8 तो 13 साल की उम्र तक के बच्चे नूं क्वालिटी एजुकेशन देना है। कदों तक? टिल 2030 तक,
2032 तक, 2033 तक, 2034 तक? जी आंसर की आ रहा है जी? हाँ जी, ए ऑप्शन 15वें का ए, 15वें का ए आंसर, 15 क्वेश्चन का ए। अच्छा क्वेश्चन है तो जो आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स आ रहा है ए ऑप्शन इज कोरैक्ट। नवी सिक्ख्या नीति का लक्ष्य 8 तो 13 साल की उम्र तक के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना है 2030 तक। कहना भाव है भी अगर 2020 दे विच ये पॉलिसी आपने को तैयार हो चुकी है, 2020 तो लैके 2030 तक 10 साल तक ये पूरे इंडिया का एक पॉलिसी दे विच इनका पूरा एक टारगेट रहेगा भी सारे बच्चों को 2030 तक एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 15 का बी नहीं है जी, 2032 तक नहीं है जी, 2030 तक है। सुधीर कुमार बी ऑप्शन तो तुसी दसिया बट वो इनकोरैक्ट है, ए ऑप्शन इज कोरैक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, नवी सिक्ख्या नीति, सॉरी इत्थे मिस्टेक है, निधि लिखा है, नीति के अनुसार हुण पीएचडी करन लई की जरूरी है? लई की जरूरी है? हाँ जी, नवी सिक्ख्या नीति के अनुसार हुण पीएचडी करन लई की जरूरी है? अगर तुसी कल अपनी नोटबुक ते कुछ नोट किया होएगा तो मैं तुहानू थोड़ा जा रिकॉल करवा रहा, रिकॉल करवा रहा तुहाडा ही काम। कल आपां गल कीती सी जदों आपां +2 तो बाद कॉलेज की स्टडी विच जा रहे हैं तो अपने कोलों 3 तो लैके 4 साल की स्टडी आप कर रहांगे, जिहदे विच अगर आपां 1 साल की स्टडी को कवर अप करते हैं तो आपां नूं की मिलता है? रिप्लाई करना जो आप कॉलेज की स्टडी में एंटर किया सी। प्लीज़ आंसर का जवाब आप बाद देने 16वें का, बट मैनू तुसी कमेंट ये दसो भी कल आप जिहड़ा कॉलेज की स्टडी वास्ते 4 साल सीरियल ऑर्डर में किया सी तो वो वास्ते आप की डिस्कस किया सी भी अगर आप 1 साल की स्टडी करांगे तो आपको की मिलेगा? सर्टिफिकेट कोर्स। याद आ रहे हैं? हाँ जी लिख दो, याद आ रहे हैं? डिप्लोमा, डिप्लोमा नहीं जी बराड़ साहब, वो जो आप 2 साल की स्टडी कर लांगे उदों आपां नूं डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। हाँ जी, वार्ड्स ने रिप्लाई किया है जो आप 1 साल की स्टडी करांगे तो सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल की स्टडी करांगे तो डिप्लोमा, तो जो आप 3 साल की स्टडी करांगे तो उदों की मिलेगा आपां नूं? हाँ जी रिप्लाई डिग्री, डिग्री मिलेगी। तो जो आप 4 साल की स्टडी कर लांगे, हाँ जी सैकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिलेगी जी। तो जो आप 4 साल कंप्लीट करांगे तो आपको रिसर्च प्लस डिग्री, थर्ड ईयर में ग्रैजुएशन, थर्ड ईयर ग्रैजुएशन की डिग्री, हाँ जी डिग्री। जो आप 4 साल कंप्लीट करांगे तो उदों रिप्लाई करना आपको की मिलेगा? रिसर्च प्लस डिग्री। हुण चलो जी आप 16वें क्वेश्चन अच्छे तरीके नाल डिस्कस कर रहे हैं। नवी सिक्ख्या नीति के अनुसार हुण पीएचडी करने लई की जरूरी है? देखो जी अगर तुहानू इन्ना तो पता होएगा ना जिहड़ा पीएचडी वर्क है वो कंप्लीटली रिलेटेड विद द रिसर्च वर्क। मैं तुहानू सिर्फ कोरिलेट करवा रहा। देखो एक क्वेश्चन आपां देख के पढ़ लैने तो याद कर लैने, एक क्वेश्चन वो होंदे ने जिन्होंने आपां पढ़ते हैं तो उन्होंने अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड किया होया क्वेश्चन अपने लंबे समय तक आपको याद रहता है। सो इत्थे देखो आपको चारों टर्म्स रिपीट हो रही ने। पीएचडी के लिए अपने लिए रिसर्च वर्क जरूरी है क्योंकि पीएचडी इज द कंप्लीटली रिसर्च वर्क। हाँ जी गोल्डी कुमार 4 ईयर रिसर्च प्लस ग्रेजुएशन, बिल्कुल सही।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ PhD ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 3 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਕਿ 2 ਸਾਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ। 3 ਈਅਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ, 4 ਈਅਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ, 5 ਈਅਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਿ 2 ਈਅਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ है, 5 की करनी कि 2 की करनी है? नव का आंसर आया है बिल्कुल कोरैक्ट बी। बी ऑप्शन इज कोरैक्ट। देखो जी पूरी तरह तुहानू साफ स्पष्ट हो रहा थे भी जदों असीं PhD करनी है तो सानू रिसर्च वर्क नू कवर जे सानू पता होएगा तो असीं PhD विच एंटर कर सकांगे। तो PhD नू कवर करने लई असीं रिसर्च वर्क करांगे ते रिसर्च वर्क नू प्राप्त करने लई किन्ने साल की स्टडी करनी पएगी? 4 साल जी। 4YBD बिल्कुल सही है जी। 4 ईयर आंसर इज बी इज करेक्ट। हाँ जी अंडरस्टैंड हो रहा है। गुड। क्वेश्चन नंबर 17 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ CCE। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ CCE? ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ CCE? क्वेश्चन नंबर 17 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ क्वेश्चन नंबर 17 ਤੇ पानी की बोतल सब कोल होनी है। तो कल मैं थोड़ा थोड़ा जी गल की सी कि पानी का सिप हल्का हल्का तुसी विचों जरूर लो तो जोड़ा कि स्टैमिना है वो अच्छा बनया रहता है जी। क्वेश्चन नंबर 17 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ किस ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है ना ये तुहाडी लैंग्वेज विच भी आ सकता है, पंजाबी लैंग्वेज विच आ सकता है भी मुलांकन नूं हेठ लिखियां विच किहड़े शब्दां विच वंडिया जा रहा है या उनका अर्थ की है मुल्लां दा अंकन। CCE दी फुल फॉर्म हाँ जी रिप्लाई आ रहा है मेरे को कॉन्टीन्यूस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 17 जिहड़ा है राष्ट्रीय मुलांकन केंद्र किस दे लई बनाया जा रहा है? हाँ जी तो एंड आंसर रिप्लाई करोगे। हाँ जी एंड आंसर है जी पहला ऑप्शन है बच्चों लिए, अध्यापकों लिए, मापिया लिए कि ऑल ऑफ द अबव। तो कई बार असी सानू कई ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव अच्छा लगता है क्योंकि उहदे विच बच्चे भी आ गए, टीचर्स भी आ गए, पेरेंट्स भी आ गए, है ना। तो आप उनका रिप्लाई कर देने डी, बट डी एंड आंसर नहीं होएगा। सो एंड आंसर जिहड़ा है कंप्लीटली रिलेटेड विद द चिल्ड्रन। द आंसर इज ए। हाँ जी 17th क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रिप्लाई हाँ सुधीर कुमार सी आंसर सही नहीं है जी ए। सिमरन हाँ रिप्लाई आ रहा है बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 नूं आपां कंप्लीट कर लिया। नैक्सट स्लाइड। सिक्ख्या मंत्रालय दे वर्तमान मंत्री कौन हन? देखो हुणे आपां पिछे क्वेश्चन पढ़िया सी, मैं तुहानूं थोड़ा पिछे लैके जावांगा। क्वेश्चन नंबर 10th हाँ जी दिखाई दे रहा ना सारिਆਂ ਨੂੰ? क्वेश्चन नंबर 10th दिखाई दे रहा ना? नवीं सिक्ख्या नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय नूं किहड़ा नाम दिता गया है? सिक्ख्या मंत्रालय। सिक्ख्या मंत्रालय नाम दिता गया ना। ये आप क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ चुके हैं। यही क्वेश्चन हुण आपां नूं 18 नंबर क्वेश्चन मिले भी सिक्ख्या मंत्रालय के वर्तमान मंत्री स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी, कस्तूरी रंजन। हाँ जी 18वें क्वेश्चन का रिप्लाई करोगे। रिप्लाई 18वें क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 का जी कस्तूरी रंजन नहीं जी ये आंसर नहीं है जी। सिक्ख्या मंत्रालय के वर्तमान जिमीज टू आप MHRD अगर डिस्कस करिए तो सिक्ख्या मंत्रालय का नाम 18वें का डी नहीं जी बी नव
अभिजोत बी, समर मेहता ए, शिंकी मोंगा डी। द जिहड़ा इहदा करैक्ट आंसर है जी बी, रमेश पोखरियाल। अगर इस नाम नूं मैं पूरा करा तां हिंदी दे विच निशांक, इंग्लिश विच निशांक। इन्हां दे नाम दे पिछे रमेश पोखरियाल निशांक भी लिखिया जाता है। ठीक है, 18वें क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है जी बी, सिक्ख्या मंत्रालय के वर्तमान मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने। क्वेश्चन नंबर 19, स्कूल सिक्ख्या के लिए कौन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा? स्कूली सिक्ख्या जी अपनी हुण तैयार हो रही है, उहदी कंप्लीट रूपरेखा कौन तैयार कर रहा है? हाँ जी, आंसर रिप्लाई करोगे। जतिंदर वर्मा जी, कॉन्टीन्यूस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, वैल्यूएशन नहीं जी, इवैल्यूएशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन आप रिप्लाई करो। स्कूली सिक्ख्या दे लई कौन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा? एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूजीसी, ऑल ऑफ द अबव। सुरिंदर नोखवाल, अमन मान, बिल्कुल करेक्ट आंसर। द आंसर इज ए, एनसीईआरटी वल्लों राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। गुड। कंबोज रुपिंदर, करेक्ट आंसर ए। सीबीएसई नहीं है जी, एनसीईआरटी वालों जी तैयार होएगा जी। क्वेश्चन नंबर 20, नवी सिक्ख्या नीति 2020 विच हेठ विचों किस नूं छड्ड के बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ एक ही साधन होवेगा? मैं थोड़ा जिहा इहदे विच एक वर्ड लिखना चाहांगा, एक ही मापन साधन होवेगा। क्वेश्चन नंबर 20th 20 नंबर क्वेश्चन ते आपां पहुंच गए हाँ। नवी सिक्ख्या नीति 2020 विच किस नूं छड्ड के बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ एक ही मापन साधन होवेगा? मैडिसन मतलब कि मैडिकल लाइन, लीगल मतलब कि जी अपनी लीगल जिहदे आपां एडवोकेट बन रहे हैं उस लाइन नूं छड्डिया जावे। सी ऑप्शन है ए ते बी दोनों, मतलब कि दोनों नूं ही छड्ड दिता जावे ते नन ऑफ द अबव भी कोई भी नहीं है। हाँ जी, 20th का सी आंसर। रमा जी, सिमरन का डी आंसर है, आरती ए। मैं क्वेश्चन तुहानूं समझा रहा क्योंकि थोड़ा जिहा डाउट ना रह जाए। नवी सिक्ख्या नीति विच जदों भी आपां बच्चा स्टडी करेगा तो वह सिर्फ मैडिसन ते लीगल दोनों टर्म्स नूं छड्ड के, मतलब कि जिहड़ा आंसर है वह सी करैक्ट है। ये दोनों जिहड़ियां लाइनस होणगियां, स्ट्रीम्स होणगियां, जदों बच्चा स्टडी करके इस दोनों फील्ड कुछ करना चाहेगा, इन्हां दा जिहड़ा मैजरमेंट होएगा वो अलग होएगा। बाकी सारियां स्ट्रीम का जिहड़ा मैजरमेंट होएगा, मापन के साधन होणगे, वो सेम होणगे। मेरी गल नूं फॉलो कर रहे हो सारे ना? रिप्लाई करो यस हाँ जी दे विच। अगर नहीं हो रहा तो मैं रिपीट करदा। नवी सिक्ख्या नीति दे विच जदों असीं 9th क्लास तो लैके 12th क्लास तक कोई भी स्ट्रीम स्टडी करते हैं, बट जो आप ग्रैजुएशन में जावांगे तो आप एक फील्ड चूज करते हैं, तो उहदे विच आपां मैडिकल लाइन या लीगल लाइन जदों असीं स्टडी करांगे उन्हां दे मापन के साधन अलग अलग होणगे। बाकी जिन्नियां स्ट्रीम्स होणगियां उन्हां दे मापन साधन बिल्कुल सेम होणगे। ठीक है, सो इहदे क्वेश्चन पूछा गया है भी हेठां विचों किस नूं छड्ड के बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ, हेठां विचों किहनूं छड्ड के मैडिसन लाइन भी अलग होएगी तो लीगल लाइन भी अलग होएगी, तो ये दोनों लाइन्स अलग होंगे, तो सी ऑप्शन में दोनों ऑप्शंस आ रही हैं। सो इस करके अपना आंसर किहड़ा है? सी। सी इज करेक्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, रमेश पोखरियाल निशांक हरिद्वार तो एमपी ने,
जतिंदर वर्मा डी, शाहरुख कम्युनिकेशन जी रिप्लाई करता जी मैं दा 20th द सी ऑप्शन इज करेक्ट। 20th द संदीप मनदीप सोडी जी 20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। 21 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ DECE ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟਿਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। 21st ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? 21st ਦਾ ਆਨਸਰ जी 21st द बी, 21st द बी, 21st द बी बी। बड़ी जल्दी ना रिप्लाई कर रहे हो। हाँ जी बी ऑप्शन द करैक्ट है। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कई बार आप जल्दबाजी विच अर्ली की जगह ते एवरी, मैं थोनों ये इंटीमेशन दे रहा हाँ कि बहुत बार क्वेश्चन इस तरह बच्चों के गलत हो जाते हैं जो पेपर करके बाहर आते हैं तो देखते हैं ओ अपने मूँह के वर्ड ओ माई गॉड यार मैं तो जल्दी ना गलत करता। सो इस करके इन्हों ध्यान दे नाल पढ़ना जरूरी है। टेक्निक्स हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर ये बहुत जरूरी है। कई बार असी स्पैसीफिक टर्म्स आपके नाल लै जाने, स्पैसीफिक टर्म्स मतलब कि नॉलेज का नाल लै जाने, पर जी जनरल टर्म्स होंदियां ने उन्होंने ध्यान नहीं रखते। जनरल टर्म्स होंदियां ने टाइम बाउंडेशन कितनी है, सबजैक्ट दी मार्किंग किस तरह है, भी नैगेटिव मार्किंग है या विदाउट नैगेटिव मार्किंग है, ऑप्शंस किस तरह के कोल अपने कोल आए हुए ने भी ऑप्शंस नूं आपां किस तरह स्टडी करिए तो उहदा रिप्लाई करिए। ठीक है। 22nd क्वेश्चन स्कूली सिक्ख्या तो बाद किन्ने साल कॉलेज की पढ़ाई तो बाद रिसर्च प्लस डिग्री प्राप्त होएगी? इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हाँ जी 22nd द 4th बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अलका मैम हाँ जी 22nd दा बैटरी डाउन होने वाली मोबाइल दे ला दो। हाँ दूसरा ला स्कूली सिक्खे तो बाद किन्ने साल की पढ़ाई तो बाद रिसर्च प्लस डिग्री प्राप्त होएगी? 4 ईयर बाद। बिल्कुल करेक्ट। हाँ 4 ईयर 20 मनदीप सोडी 21st द बी। हाँ भी ठीक है जी। रुपिंदर डी ऑप्शन तुम कि दे रहे हो 22nd का दे रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है जी। हाँ जी 23rd क्वेश्चन भारत के इतिहास हुण तक कितनी बार सिक्ख्या नीति आ चुकी हैं? रिप्लाई करो जल्दी। इजी क्वेश्चन है। एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? हाँ जी ठीक है। 4 22nd द 4th सुरिंदर 3 आंसर। थर्ड नंबर 3 23rd द 4th नव जी 23rd द 4th क्यों है जी? मैं तुहानू शुरू तो गल कर ली है आपां 1968 1986 1992 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 1992 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸकी ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੀ 3। ठीक है 23rd ਦਾ सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 50% GER ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ? GER GER ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो।
ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ 50% ਗ੍ਰੋਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 2020। ਅੰਜਲੀ ਕੌਰ ਜੀ 2020 ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀ 2035। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ 2035 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 100% GER ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 2030। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2035 ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2030 ਤੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਭਿਜੋਤ, ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 24th ਦਾ ਡੀ, 24th ਦਾ ਡੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24th ਦਾ ਡੀ ਫॉर ਡੌਗ, ਤੇ 25th ਦਾ ਬੀ ਫॉर ਬॉय। ਹਾਂਜੀ 25th ਦਾ ਬੀ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ 100% GER ਗ੍ਰੋਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ 2030 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ 2035 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੇਡ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ CAT ਕੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੰਜਲੀ ਕੌਰ, ਅੰਜਲੀ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਜਲੀ ਕੌਰ, ਹਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਕਲਾਸ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਹੁਣੇ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ 9877656930। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਲਾਈਡਸ PPTs ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 8283822473। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਰਹੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਮਾ ਜੀ।
हाँ हाले क्लास अपनी खत्म नहीं हुई है, एक छोटा जिहा तो इंपोर्टेंट कंटेंट मैं तुहानू दसना चाह रहा। द वर्ड PARAKH परख, इहदी फुल फॉर्म नोट कर लो, इंपोर्टेंट है। परख ये जिहड़ी हायर एजुकेशन दे विच जदों आपां उच्च सिक्ख्या दे विच ये मैं इहदे नाल अटैच कर रहा। उच्च सिक्ख्या दे विच जिहड़ी असैसमेंट, मतलब कि जिहड़ी उच्च सिक्ख्या दा आकलन होना है ना, आकलन मूल्यांकन होना है, वो परख दे बेस ते होना है। परख दी फुल फॉर्म नोट करो, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, असैसमेंट, असैसमेंट मैं समझा भी देना, रिव्यू, रिव्यू एंड एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक, होलिस्टिक डेवलपमेंट। फुल फॉर्म मैं तुहानू इहदा कंसैप्ट 2 मिनट का है जी, ध्यान देना, सुन लो। उच्च सिक्ख्या का जिहड़ा आकलन होना है वो परख दे बेस ते होना है। परख दी फुल फॉर्म परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब होंदा जो असी कर रहे हाँ। असैसमेंट ओदा आकलन, रिव्यू जिहड़े एक्सपर्ट्स होणगे वो रिव्यूज देणगे, एनालिसिस नूं पंजाबी च बोलदे ने वंड करना, तुहाडे सारे काम दी वंड कीती जाएगी। ऑफ नॉलेज मतलब कि ज्ञान, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक होंदा है अंदरूनी, तुहाडे अंदरले विकास की परख की जाएगी। इस परख शब्द नूं एंटरटेन किया गया न्यू एजुकेशन, नवी सिक्ख्या नीति 2020 के उच्च सिक्ख्या दे विच। न्यू सिक्ख्या दे विच आपां नूं एंटरटेन किया गया, ठीक है जी। हाँ जी, परख। पेड क्लास का टाइम दसो, वाट्स तुसी तुहानू अपने कॉन्टैक्ट नंबर शो ऑफ हो रहे हैं, तो तुसी उन्हां नाल प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो, डायरैक्ट कॉन्टैक्ट टू द क्वेरी नंबर 8283822473। 2 मिनट दे विच मैं तुहानू पेड क्लास दा सारियां टर्म्स एंड कंडीशन दस रहा। क्लास अपनी लगभग खत्म है, 2 मिनट तुसी ऑनलाइन मेरे नाल रहो, मैं तुहानू उहदे बारे सारा कंटेंट दस रहा कि हाउ टू ज्वाइन द पेड क्लासेस। आपां कल तो ਉਹੀ ਬੱਚੇ ज्वाइन होणगे जो बच्चे साडी ऐप ਦੇ ਵਿੱਚ पेड होणगे। सर एक मिनट, हाँ जी सर आना जी, ਉਹ PPTs ओपन कर ਜਿਹੜੀ करनी है। हाँ जी थैंक यू स्टूडेंट्स। पेड क्लास ਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंस्ट्रक्शन ਸਾਰੀਆਂ देन जा रहा। पाँच मिनट तुसी लाइव रहना सारे स्टूडेंट्स, तो मैं सारा कुछ तुहानू दस रहा उहदे बारे। राहत इंस्टीट्यूट एनटीडी का सिलेबस कल मिति 3/6/2021 तो शुरू हो चुका है। कल तो अपनी क्लासेस जी डैमो क्लासेस ही मीनस टू अज 4 तरीक है, अज भी सिलेबस असी अकॉर्डिंग टू कंटेंट शुरू कर दिता है। तुहानू जो भी है कंटेंट टाइम टू टाइम मिल रहा है। ऑनलाइन बैच कल तो एनटीटी की रेगूलर कोचिंग क्लासां साडी राहत इंस्टीट्यूट की एंड्रॉयड ऐप ते लगणगियां। एंड्रॉयड ऐप तुसी अपने एंड्रॉयड फोन तो राहत ऐप इंस्टीट्यूट की ऐप नूं तुसी डाउनलोड करोगे, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली तुसी अपने पेड क्लासेस नूं ज्वाइन कर सकते हो। क्वेरी नंबर भी तुहानू नीचे दिते हुए ने। जेकर तुसी साडे तो कोचिंग लेना चाहते हो तो अज ही साडी एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो। गूगल प्ले स्टोर ते जाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ऐप डाउनलोड करो ਅਤੇ कोर्स ਨੂੰ सिर्फ 1499 रुपीज़ अदा करके खरीदो। मैं दी एक एग्जाम्पल देवांगा,
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक महीने दे विच अगर वो एवरेज परसन भी है घट्टो घट्ट एक सूट जरूर खरीददा है, एक पैंट या शर्ट। उदाहरण के तौर पर लगभग 1000 तो लैके 1500 रुपए आपां कपड़े ते एक नॉर्मल इंसान जरूर लगांदा है। सो 1499 ये तुसीं अज ये समझ लेना कि असीं इस मंथ दे विच एक नवां सूट खरीदिया है। ਤਾਂ इस गल नूं फ्यूचर विच देखो भी अगर तुहानूं इस कंटेंट के थ्रू 27 ऑफ जून ਨੂੰ एक ਅਜਿਹੀ आउटपुट मिलती है जो ਤੁਹਾਨੂੰ गवर्नमेंट जॉब दिला रही है तो ਤੁਸੀਂ 1499 ਦੇ ਨਾਲ एक सूट की एक अपने एम्स की अपने एक ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ डिसाइड ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 82838 22473 82838 22473 ਤੇ डायरेक्ट संपर्क करो। ठीक है जी। ओनली 1499 रुपीज़ दे विच गूगल प्ले स्टोर ते राहत इंस्टीट्यूट तुसीं ऐप डाउनलोड करो। अगर उहदे विच तुहानूं कोई परेशानी आ रही है तो तुसीं इस नंबर ते कॉन्टैक्ट करो। इस कोचिंग कोर्स हेठ लिखे तरीक़े नाल भी पेमेंट करके भी शुरू की जा सकती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईजी टास्क है। गूगल पे नंबर तुहानूं दिता है, फोन पे नंबर दिता है। कुछ बच्चे नूं प्रॉब्लम आती है कि सर असीं एंड्रॉयड ऐप तो जो डाउनलोड करांगे हाउ टू पे असी किवें पे करिए तो तुसी गूगल पे डायरैक्ट तुसी 1499 पे कर दो, फोन पे दे विच कर दो तो उस तो बाद तुसी उस क्वेरी नंबर ते कॉन्टैक्ट करो। ਉਹਦੇ वास्ते इंटरनल बैंकिंग का भी तुहानूं एड्रैस दिता हुआ है। इंडियन बैंक का अकाउंट होल्डर राहत कंप्यूटर सेंटर इंस्टीट्यूट अकाउंट नंबर दिता हुआ है, IFSC कोड है, ब्रांच है। इस अलावा बैंक नेम HDFC बैंक है, अकाउंट होल्डर नेम अकाउंट नंबर IFSC कोड ब्रांच फाजिलका। एनी ऑप्शन तुसी सिलेक्ट कर सकते हो। गूगल पे वास्ते नंबर, फोन पे वास्ते नंबर दोनों सेम ने 96,982 28,000। ठीक है जी। नंबर भी बहुत अच्छे ने तो तुसी मतलब कि बड़े आसानी के नाल उस नूं कर सकते हो। ठीक है जी। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं बोल्ड कर देना 96,982 28,000 गूगल पे फोन पे ते क्योंकि अजकल नैट बैंकिंग का है तो तुसी डायरैक्ट पे कर सकते हो। फिर उस बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हो राहत इंस्टीट्यूट की जी क्वेरीज नंबर है उन्होंने कॉन्टैक्ट करो, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजो कि सर असी इन्नी पेमेंट कर दी है, सो प्लीज़ सानू पेड क्लासिस नूं ज्वाइन करवाया जाए। डन जी। हाँ जी। इस तो बाद QR कोड भी तुहाडे सामने है राहत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हाँ जी। क्लास रिकॉर्डिड होणगियां जी, रिकॉर्डिड होणगियां। हाँ, राहत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का QR कोड तुसीं स्कैन कर सकते हो डायरैक्ट अपने फोन तो। हाँ जी। ये तो स्कैन करके तुसीं पे कर सकते हो। सो प्लीज़ लेट ना होना कि क्योंकि अज तुसीं सारा सिस्टम करोगे तो आप कल आपकी क्लास में बड़े सिस्टमैटिकली ऑर्डर के नाल चला पावांगे। सो एक बड़ा ही छोटा जिहा अमाउंट है भी जिहदे विच असीं सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन नूं इंप्रूव कर रहे हैं। ਅਸੀਂ देख रहे हैं भी अकॉर्डिंग टू डेज ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ किस तरह इंप्रूव करना है। सो ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं अगर जल्दी च रिपीट कर रहा 1 मिनट लगावांगा। राहत इंस्टीट्यूट NTDA सिलेबस कल तो शुरू कर दिता है। अज साडी सैकेंड डैमो क्लास है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सी, कल तो पेड क्लासेस स्टार्ट होणगियां। सो इस करके अपनी एंड्रॉयड ऐप तो एंड्रॉयड फोन तो राहत इंस्टीट्यूट की एंड्रॉयड ऐप ते जाओ, उत्थों तुसी गूगल प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो। 1499 रुपीज़ सिर्फ तुसी पे करने, जिहदे विच असीं तुहानूं लगभग 25 डेज की कोचिंग प्लस मॉक टेस्ट प्लस डिस्कशन ऑथेंटिक मटीरियल रिकॉर्डिड लैक्चर्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस लैक्चरर्स ये सब कुछ तुहानूं प्रोवाइड करांगे। ठीक है। हैल्पलाइन नंबर तुहाडे सामने है 82,838 22,473। गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर 86,982 28,000 ते डायरैक्ट पे कर सकते हो। पे करने तो बाद स्क्रीनशॉट तुसी WhatsApp करो, उस बाद तुसी क्वेरीज नंबर से डील करके अपने आप को पेड क्लासेस में ज्वाइन करवाओ। तो QR कोड तुहाडे सामने है। सो प्लीज़ इनू डिले ना करना, लेट ना करना। तो एक मैं छोटी जी होर सुजैशन देवांगा, डाइवर्ट ना होना क्योंकि ये जो 15-20 दिन दे विच एक फोकस करने का टाइम है कि असी 2-4 दिन क्लासेस डैमो मिल रही हैं क्योंकि अजकल की जी सोच बन रही है 2 दिन डैमो क्लासेस असी
A ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਦਿਨ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ B ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਫੰਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आप कल सेम जो भी टाइमिंग हो